Hello student, today I am going to teach about the subject Money and Banking, class 12, chapter 1st and it part 7. We will study about unit banking. Unit banking means such banking system wherein bank carry on their banking business alone and along with few other branches situated in very limited area. That is a limited area. And second is a business alone or with few other branches. It means that such unit banking work with limited area. The area will be one particular state, one particular city, and the branches, if possible, then branches should be available of that bank. Otherwise, they work alone. Such banking is prevalent in United States of America. Generally, banking system could not be monopolized by some larger bankers. This banking work alone. They are not monopolized by some larger bank. It means कि इसका जो भी ब्रांचेस है वो उसी एरिया में होगा. उसका कोई हेड ऑफिस भी है तो वो उसी एक एरिया में होगा. बट we have taught about the branch banking. Branch banking, head office situated in another area and branches are situated another places, another state. You can understand this unit banking from this picture. That is a bank. That is a bank situated only UP, Uttar Pradesh. If branches are available only in Uttar Pradesh. If branches are available only in Uttar Pradesh, the bank, their branches should not be available in another places. It means the head office are situated in same area and their branches, if possible, then they are also situated in same area. Merit of unit banking: easy manage, control and supervision. Under unit banking, banks do not have branch or have only few branches which are limited to particular city or state only, whereby can be easily managed, control and supervise. If branches are available, then they can be easily manage, control and supervise. Second is a liquidations of insufficient and unprofitable branches. Under unit banking, branch which are weak, insufficient and earning no profit cannot carry their business for long period. Unit unit bank, they are closer their closure is certain finally. लिक्विडेशन ऑफ इनसफिशिएंट, अगर यूनिट बैंकिंग अगर वीक है या उसका मैनेजमेंट इनसफिशिएंट है या वहाँ की अर्निंग कुछ भी नहीं है तो वो ब्रांचेस, वो यूनिट बैंक जो है वो इजीली एंड अप हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी. द थर्ड पॉइंट इज अ चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड. The area of operation of branch established under unit banking is very limited. Hence, they have control on very limited financial resources. Thus, there are the least possibility of the establishment of monopoly in banking business. We know that the unit banking work with limited area and एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ बैंक. जो बैंक का वर्क होता है जिस जगह वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब वो एक लिमिटेड प्लेस पर एक लिमिटेड एरिया पे काम करेगी. दैट इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ यूनिट बैंकिंग. they have control only a very limited financial resources. और ये यूनिट बैंकिंग जो है वो बहुत ही लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है. इन
Thus there is least possibility of the establishment of monopoly. जो मोनोपोली का है, जो एक राइट है दूसरे हेड का, तो वो बहुत ही लीस्ट है ये किसमें, यूनिट बैंकिंग में. Fourth point is a preference to local interest. Such banks are active in limited area only, therefore their local customers are important for them. They have full knowledge about the local requirement. They work in very limited area, that they are know very well about the customer, about the person of that particular area, and they have full information about the local requirement. Fifth point is the increasing efficiency. Under unit banking, head office now situated at very distance from its branches, if branches are possible. अगर उस यूनिट बैंक की ब्रांच है, वरना ज़्यादातर यूनिट बैंक अकेले ही काम करता है. ये जस्ट लाइक ये बैंक है और ये उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि हमारे बैंकिंग सिस्टम है, एडवांसिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये सारे काम उसके से. मगर इसकी मेन चीज़ है इसके लिमिटेड एरिया है, और लिमिटेड एरिया होने की वजह से इसके कस्टमर इतने नहीं होते. कोई भी पर्सन है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही उस बैंक से फ़ायदा उठा सकता है जहाँ पे ये बैंक है. अगर वो पर्सन किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हुआ और वह दूसरे एरिया में किसी काम की वजह से वो गया, तो वो उसको अगर मनी ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ी या एनी थिंग्स दे हैव नीड, तो वो जो है इस यूनिट बैंकिंग का प्रॉफिट नहीं ले पाएगा. तो इन दैट सेंस ब्रांच बैंकिंग इज़ वेरी हेल्पफुल. इफ़ दे हैव ब्रांचेस हिंस द हेड ऑफिस नॉट unknown of the problem the branches. If any problem occur, then taken immediately action of that problem. Increasing efficiency. They work in very limited area and head office are situated in same area if the branches are available. In any problem are occurring related to any branches या in head office, the problem can be solved immediately. And another point we will discuss about the difference between branch and unit banking. Branch banking bank operate through the branches connected each other. Each branch providing usual banking services, but the control is done by the head office and central office. ब्रांच बैंकिंग क्या है कि इसमें जो कंट्रोल है वो हेड ऑफिस के थ्रू हेड ऑफिस कंट्रोल जो पूरा होता है वो हेड ऑफिस के थ्रू होता है, हेड ऑफिस करता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं. बट इन यूनिट बैंक इज़ जनरली अ सिंगल ब्रांच एंड स्मॉल बैंक. एक सिंगल ब्रांच है और एक स्मॉल बैंक है. अगर स्मॉल बैंक है तो उसका एक दो सिंगल ब्रांच होगा, वरना वो खुद अकेला होगा. विच प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी. ये सिर्फ लोकल पर्सन, लोकल कम्युनिटी, उस एरिया में जितने भी लोग लोकेटेड है उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करता है. एंड इन देयर आर नो ब्रांचेस एंड स्मॉल ब्रांचेस इज लिमिटेड लोकली ओनली. अगर उसके ब्रांचेस हैं नहीं, अगर हैं तो वो उसी लिमिटेड एरिया के ही रहेंगे. सेकेंड पॉइंट इज अ ब्रांच बैंकिंग इज अ मोर स्टेबल एंड सेकेंड पॉइंट सेड दैट जो ब्रांच बैंकिंग है, अगर उस किसी एक लोकल इकॉनमी में, किसी एक लोकल एरिया में अप और डाउन हो रहा है, तो उसके दूसरे ब्रांचेस और हेड ऑफिस उसको स्टेबल कर लेते हैं. बट इन यूनिट बैंकिंग आर वनरेबल टू फेलियर and are subjected to heavy risk in the case of failure of the local economy. अगर कोई लोकल इकॉनमी फेल होती तो हैवी रिस्क हो सकता है, और यूनिट बैंकिंग में भी वो इतना अच्छे से उसको मैनेज ना कर पाए, वनरेबल ना कर पाए. सी पॉइंट इज अ ब्रांच बैंकिंग हैज़ अ लेस ऑपरेशनल फ्रीडम. ब्रांच बैंकिंग के ऊपर फ्रीडम जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऑल द थिंग आर डन बाय द हेड ऑफिस. यूनिट बैंकिंग हैज़ अ मोर ऑपरेशनल फ्रीडम. ये पूरी तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम होते हैं, ये अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इमिडिएटली सॉल्यूशन हो जाता है.
ब्रांच बैंकिंग हैज़ अ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इट डिस्पोजल। इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ब्रांचेस अवेलेबल in huge area. The financial resources in unit banking are concentrated only in one unit. जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं यूनिट बैंकिंग में वो सिर्फ एक ही यूनिट के ही थ्रू कंसनट्रेट होता है। इट मीन्स इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू ब्रांच बैंकिंग के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से बहुत कम होता है। सिंस द डिसीजन मेकिंग इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफिस, जो डिसीजन होता है वो हेड ऑफिस उसमें लेता है। और द प्रोसेस इज स्लो इन द ब्रांच बैंकिंग में प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होता है क्योंकि डिसीजन आर टेकन बाय द हेड ऑफिस एंड इट मे बी टू टेक डिसीजन बाय द हेड ऑफिस मे बी अ लेट। Decision making is the fast due to the all decision to be made in one unit, and unit banking involve lower cost of supervision। और इसमें क्या होता है डिसीजन बहुत ही स्पीड लिया जाता है, बहुत ही फास्ट लिया जाता है क्योंकि वो एक ही यूनिट के ही थ्रू लिया जाता है और एक ही यूनिट मतलब एक ही ब्रांच होता है, एक ही बैंक होता है, वो अपना डिसीजन इंडिविजुअली आसानी से ले सकती है। द ब्रांच बैंकिंग गोज head in head with the division of labor and some branches may offer specialized services। ब्रांच बैंकिंग क्या है, इनके पास एक स्पेशलाइज पर्सन होते हैं और ये जो है एकदम हर एक काम को बराबर से लेकर चलते हैं, बराबर से डिवीज़न ऑफ द वर्क के साथ कि जिसके अंदर जो सी क्वालिटी है, जो लेबर जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है उसको वही वर्क दिया जाता है जिससे कि वर्क जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। सिंस देयर इज़ अ वन यूनिट देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर एंड नो स्पेशलाइजेशन इन वर्किंग। ये सिर्फ एक ही यूनिट है तो इसीलिए जो है इसमें कोई भी लेबर का डिवीज़न नहीं हो पाता और स्पेशलाइजेशन इन सर्विस इसमें नहीं मिलती थी। अब हम इसमें एग्ज़ाम्पल है कि जो ब्रांच बैंकिंग है उसके एग्ज़ाम्पल हम देंगे वो एसबीआई को हम लोग देखते हैं कि ऑल ओवर द आवर कंट्री आर अवेलेबल। अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलती है और हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर भी उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इवन एक लोकल एरिया में भी जाते हैं वहाँ पर भी हमको एसबीआई बैंक मिल जाएगा। मगर बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि हमको सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलती है और हम दूसरी जगह जाएंगे तो वो बैंक हमको कहीं नहीं सुनने को मिलता, तो वो हमारा यूनिट बैंकिंग हो जाएगा जो हर जगह अवेलेबल है, जिसकी हर जगह ब्रांचेस हैं, वो बैंक इसमें आ जाएगा, कम इन द ब्रांच बैंकिंग। आई होप ऑल द पॉइंट will be clear. You have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you.